પંડિતોના ક્ષેત્રમાં કદાચ વિદ્વાનની કિંમત હોય, સંસારના ક્ષેત્રમાં કદાચ ધનવાનની કિંમત હોય, પણ સરસ્વતીના દરબારમાં શ્રી જય વસાવડાની જ કિંમત છે. સંસારના મહાન સાહિત્યકારો, કવિઓ અને લેખકો પોતાની કલમની અમૃત ધારથી વહાવીને સમાજને સમૃદ્ધ બનાવ્યો છે. તેમાં શ્રી જય વસાવડાજીનો અમૂલ્ય પ્રદાન રહેલું છે. ગુજરાતી સાહિત્યના કવિ શ્રી રાજેન્દ્ર શુક્લજીએ પોતાના દીકરા દીકરીને સ્કૂલમાં મોકલ્યા સિવાય ઘેર જ શિક્ષણ આપ્યું છે. તેવી જ રીતે આપના લોકલાડીલા લેખક શ્રી જય વસાવડાજીએ પ્રાથમિક શિક્ષણ શાળાએ ગયા વિના ઘરે જ માતા પિતા પાસેથી મેળવ્યું છે. સ્વતંત્ર અને આનંદી જય કલમના ખોળે માથું મૂકી જિંદગીના ઝંઝાવતોને છાતીમાં ભરી ચાલતા શબ્દોના સથવારે સંઘર્ષોને પાર કરતા વસાવડાજી માટે જીવન એટલે લાઈફ ઇઝ અ સોંગ, સિંગ ઇટ. લાઈફ ઇઝ અ સ્ટ્રગલ, ફાઇટ ઇટ. જીવન એક ગીત છે, તેને ગાવું જોઈએ, અને જીવન એક સંઘર્ષ છે, તેની સામે લડવું જોઈએ. તેમના સર્જનમાં સિનેમાથી સાહિત્ય, રાજકારણથી સમાજકારણ, શિક્ષણથી શૃંગાર, વિજ્ઞાનથી વિચાર, આધુનિકતાથી આધ્યાત્મ જેવા વિષયો પર 25,000થી વધુ પુસ્તકો, મેગેઝિન્સ અને 5,000 કરતા વધુ સીડીઝ, ડીવીડીઝ નો સમાવેશ થાય છે. સંશોધન અને વ્યાખ્યાનો માટે અમેરિકા, જર્મની, દુબઈ, થાઈલેન્ડ જેવા દેશોના તેઓ પ્રવાસ કરી ચૂક્યા છે. તો આ તબક્કે સાહિત્યના વિવિધ પાસાઓના સર્જક વિદ્વાન શ્રી જય વસાવડાજીને આપ સમક્ષ પ્રસ્તુત કરું છું. તો આવો આપણે સૌ તાળીઓના નાદ સાથે તેમને વધાવી લઈએ. શ્રી જય વસાવડાજી. Dignitaries on the dais, respected trustees, principal, director Sri Rajput sir, the person who has initiated my invitation over here, Mahesh bhai, all the faculties, lecturers, and you, the bright young Saffron students, and the students across the Gujarat, across the India. Now I am in a catch-22 situation basically. As a speaker, and practically a speaker who is connected with the youth most of the time, I know that most of the Gujarati students would love to listen the lecture in Gujarati. I have started in English, so at least you can see that I can speak in English, but that's a dilemma. That's a dilemma. I know that. Now there are some students I have been told that coming from the different background. They are non-Gujarati students maybe. In engineering, you never know. Engineering is a kind of a faculty. It's a global faculty, global branch. So there must be students over here, I guess, who are not accustomed with the Gujarati. Are you there? Any person who is not well versed with the Gujarati? I think one or two over here only. No, I have got a middle pass. Don't worry about it. Okay, we are the Indian people. We believe in Jugaad. Okay, we will fix the situation as it comes. That's our forte. That's our domain area. How to fix the situation? So, our Jugaad is Hindi language, with a dash of English, with a dash of Gujarati in between here and there. But most of the time Hindi is a kind of a language because of Bollywood and because of Tollywood, that it connects with whole nation right now, barring a few of the states. But now I have seen, I came across even southern states. The young people of the southern states, because of the movies, they are well versed with the Hindi language too now. So are you comfortable with Hindi now? Great, wonderful. તો આપણા જે મિત્રો જેમને ખ્યાલ ન આવે ગુજરાતીની અંદર, એ પણ એક વ્યક્તિ પણ વંચિત રહી જાય એવું આપણે શું કામ કરવું?
આપણો આદર્શ તો એ જ છે આપણી સંસ્કૃતિનો કે છેલ્લે બેઠેલો એક વ્યક્તિ પણ છે એ જ્ઞાનમાંથી વંચિત ન રહેવો જોઈએ. ઉમંગો છે સાથી, સપના છે મિત્રો, આંખોમાં રંગીન મોસમના ચિત્રો, સરળતાથી ચાલીએ મુશ્કેલ પંથે, અમને અમારી જવાની ગમે છે. That's the spirit of Safrodi basically. Safrodi means बसंती. ये जो कलर है वो रंग में बसंती का कलर है. हम बसंत की सीजन में यहाँ पे इकट्ठा हुए सब इन सीजन ऑफ स्प्रिंग, such a vibrant season of flowers, season of Cupid, season of Valentine, season of बसंत पंचमी. एंड मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबके ये वासंती कलर्स को देख के. इसलिए नहीं कि आप सब ऐसे कलर पहन के यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसलिए कि आपने 2 दिन तक यहाँ पे ये पूरा वेक फेस्टिवल करके आपके अंदर छिपे हुए जो कलर्स है, आपके लहू के खून के जो रेड ब्लड पैशन का जो बसंती कलर है, वो आपने आप दिखाया है. यूथ मीन्स पैशन, इट्स ऑल अबाउट पैशन. आपके पास पैशन है, इसलिए तो आपने कलर्स दिखाए, अपने जौहर दिखाए, अपने हुनर दिखाए, अपनी क्रिएटिविटी को आज आपने कुछ उड़ान दी. और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जवान लोग अगर उड़ेंगे नहीं आसमान में तो क्या खाक बूढ़े उड़ेंगे. अब एक बड़ी अच्छी हिंदी साहित्य की पंक्ति, अब मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं तो हिंदी साहित्य की पंक्तियों को भी याद करूंगा. कौन कहता है सपने को ना आने दो हृदय इवेंट के माध्यम से इस पूरी सफरोनी इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाहर आ सका, शायद उनका नहीं आ सका था उस वक्त. ये हो सकता था, ये हो सकता है क्योंकि हमारे पास एनर्जी तो बहुत है, पोटेंशियल तो बहुत है. चेतन भगत कहते हैं ना ये भारत जो है वो 1 बिलियन स्पार्क्स का देश है. मैं तो कहता हूं कि 1 बिलियन स्माइल्स का देश है. हर जगह पे लोग मुस्कुराना चाहते हैं, लोग हंसना चाहते हैं, लोग लड़ना नहीं चाहते, हंसना चाहते हैं. वो चाहे अक्षय कुमार और परेश रावल की फिल्म देख के मुस्कुराए, चाहे महेंद्र सिंह धोनी की क्रिकेट टीम की जीत देख के मुस्कुराए, लेकिन दिस इज अ कंट्री विद 1 बिलियन स्माइल्स अक्रॉस द स्ट्रगल. लोग बड़ी मुश्किल में है, मुझे मालूम है. आप जवान हो, काफी सारी परेशानियों से ग्रस्त होंगे. There will be too many challenges, difficulties in life, frustration, depression. किसी ने अगर हमारे सामने मुस्कुराया नहीं तो हम अपनी मुस्कान खो देंगे कहीं पे. ये तो होता है. अब प्रॉब्लम ही ये है, हमारे यहाँ करियर बनाने की उम्र और पार्टनर बनाने की उम्र दोनों एक ही साथ चलती है. अब तो ये भी डिफिकल्ट सिचुएशन है जीवन में. दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको क्या करना है वो आप सोच लीजिए जो आपकी करियर है, और किसके साथ करना है वो भी आप तय कर लीजिए जो आपका पार्टनर है. ना आप मुझे मालूम है आप इतने उछल कूद के बड़े खुश हो गए कि चलो ये पार्टनर वाली बात हुई, अब कुछ टिप्स भी मिलेगी उसकी. अब मैं तो एक बड़ी एक्सक्लूसिव टीम का सदस्य हूं जिन्होंने शादी नहीं की. राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, देख लीजिए, अब्दुल कलाम, सलमान खान. आई एम इन अ ग्रेट टीम. बड़े स्टॉलवर्ट की टीम है हमारी. लेकिन मैं आपको बता दूं, एक बात बता दूं, एक सिंपल सी बात बता दूं. आप इतने बड़े एक्साइटेड हो गए मोहब्बत का नाम सुन के, इश्क का नाम सुन के, पार्टनर का नाम सुन के, तो मैं आपको एक गुजराती की पंक्तियां सुना दूं जो हिंदी समझ में आए उनको भी समझ में आ जाएगी. हमारे बड़े शायर साहब है मरीज, गुजरात के गालिब कहे जाते हैं. मरीज साहब ने एक बार लिखा था, फक्त 1% જોઈએ મોહબ્બતમાં. ફક્ત 1%, એક જ. ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ સાહેબ બેઠા છે, પૂછો એમને હિસાબ. ફક્ત 1% જોઈએ મોહબ્બતમાં, બાકીના 99 ખર્ચી નાખ હિંમતમાં. अब यही तो मैसेज है जो स्वामी विवेकानंद ने 100 साल पहले किया. अभय, मर्द बनो, सिंह बनो, अभय. यही तो मैसेज है जो कृष्ण ने हजारों साल पहले दिया. करेज, कॉन्फिडेंस, युद्धस्व, स्ट्रगल. लेकिन ये मैसेज मोहब्बत के मामले में भी काम आता है, लेकिन ये आता नहीं है सबको. ये प्रॉब्लम, हिम्मत नहीं आती. आप फील करते रहोगे और कोई किल करके चला जाएगा, ऐसा होगा अगर हिम्मत नहीं करोगे.
तो जो मोहब्बत में जायज है वही तो जिंदगी में भी जायज है। वहां पे भी हिम्मत रखनी पड़ती है। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, वहां का चांस चाहिए, अगर आपको कुछ करके दिखाना है, अगर आपको कुछ बाहर आके दिखाना है, अगर आपको दुनिया के सामने लड़के दिखाना है, तो भी आपको एक चीज चाहिए, आपके अंदर की करेज, आपके अंदर की हिम्मत। कर जा रहे या मर जा रहे, तो एबीसीडी का सॉन्ग है अभी, है ना, या नहीं है? तो मरने के लिए तो काफी उत्सुक होते हैं। मैंने देखा है यंग स्टूडेंट्स काफी सारे सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, उठने के लिए उत्सुक इतना नहीं होते। बड़ी खेद की बात है। उर्दू के बड़े महान शायर है इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के शायर लेखक, उनकी एक पंक्ति है, बड़ी अच्छी पंक्ति है। झपटना पलटना पलटकर झपटना, झपटना पलटना पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना। शाहीन मानी बास, ऊपर ही उठता है, नीचे नहीं आता, ऊपर ही उठता है। लेकिन अगर आप उसकी उड़ान देखोगे, झपटना, हंटिंग, ग्रैबिंग, झपटना, पलटना, फिर वापस, फिर कहीं पे बैठना नहीं, आराम नहीं करना है, अपने घोंसले में दुबक के नहीं वापस चले जाना है, फिर पलट कर झपटना, अगेन कमिंग बैक। लहू गर्म रखने का है एक बहाना। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे, अगर हमारी एनर्जी को हम हवा नहीं देंगे, अगर हम कुछ करके नहीं दिखाएंगे इस दुनिया के सामने, तो फिर हमारा लहू जो है वो गर्म नहीं रहेगा, वो सुप्त हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और सोने वाले लोग, कुछ कर नहीं दिखाने वाले लोग जिंदा रहे तो क्या जिंदा रहे, वो जी ही नहीं अभी, क्योंकि उन्होंने कुछ जिंदगी में कुछ करके दिखाया नहीं किसी को। लहू गर्म रखने का है एक बहाना कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना। जिनको बहस की उड़ान चाहिए अपनी जिंदगी में, उनको एक घोंसले में बैठकर, एक आशियाना में बैठकर कोई सिक्योरिटी के साथ रहकर नहीं जीना है, उनको आगे निकलना है दूसरों से, उनको पहले आके झेलना है। शाहीन बनाता नहीं आशियाना। शाहीन बनना है तो आपके अंदर जज्बा चाहिए। क्या होता है, मैंने एक बार बताया था, जर्मनी में एक सोल्जर आया आर्मी में भर्ती होने के लिए, और उसकी वो, जैसे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वीके सिंह साहब के साथ हुआ, ऐसा वाकया हो गया उनके साथ भी, वो सोल्जर के साथ। उससे अपनी उम्र बताई इंटरव्यू में कि मेरी उम्र 21 साल, और फॉर्म में लिखा हुआ था, रिटर्न फॉर्म में उसके बर्थ सर्टिफिकेट के साथ 22 साल। तो जो कमांडर ने उसका इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि बेटे गलत क्यों कह रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा बड़ा बढ़िया इंटरव्यू गया है, यू आर प्राइम कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन, और एक जवाब तुमने गलत दिया, अपनी खुद की उम्र तुम्हें याद नहीं, तुम्हारी बर्थ सर्टिफिकेट में 22 साल लिखा है, तुमने बोल दिया 21 साल, 1 साल से क्या फर्क पड़ेगा इतना, तुम्हें यूं भी हम सिलेक्ट करने वाले थे। तो उस सोल्जर ने, एस्पायरिंग सोल्जर ने ऐसा जवाब दिया कि सर बात तो सही है, लेकिन 1 साल जो मैंने गंवा दिया मेरी जिंदगी का, 1 साल जो छूटा मुझसे, वो एक सीरियस छूटा कि मैं बीमार पड़ गया, बाहर निकल नहीं पा रहा था, घर पे अपनी खटिया पे सो रहा था पूरे साल। तो उस 1 साल में कभी जिया नहीं, मैं बाहर निकला नहीं, मैंने कुछ एडवेंचर नहीं किए, मैंने कुछ नया ज्ञान अर्जित नहीं किया, किसी लोगों से मिला नहीं, किसी के आंख में आंख डाल के देखा नहीं, कहीं घूमा नहीं, कुछ नया ज्ञान, कुछ नई किताबें, कुछ नया मनोरंजन, कुछ नया अनुभव, कुछ नया प्रवास, कुछ मैंने किया नहीं, सिर्फ सोता रहा, सिर्फ पड़ा रहा बीमार बन के। तो मैं एक जवान हूं इस देश का, मैं कहता हूं कि 1 साल जो मैंने जिया नहीं, जिसमें मैंने कुछ नया किया नहीं, जिसमें मैंने कुछ नया सीखा नहीं, वो 1 साल मेरी जिंदगी से मैं रद्द करता हूं, क्योंकि ये साल मेरी उम्र में नहीं गिना जाएगा। ये शाहीन बनाता नहीं आशियाना। अगर आपने कुछ नया नहीं किया, अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अगर आपका बायोडाटा वही का वही रहा 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, तो वो साल तो चले गए लेकिन जिंदगी नहीं आई उसमें। तो यही तो है, आप सब जो है आज 2 दिन के लिए यहां पे हुए, अभी भी थोड़े बहुत मनोरंजन के मूड में है, ये मैं देख रहा हूं और सुन रहा हूं। तो क्या किया आपने अभी 2 दिन तक? आपने क्रिएटिविटी की, फाइन, आपने प्रोजेक्ट्स किए, ग्रेट, आपने कुछ नया सीखा, नए दोस्त बनाए, ग्रेट, वंडरफुल। मैं दुआ करता हूं कि नए दुश्मन नहीं बनाए होंगे। 2 दिन का वक्त कब कम होता है उसके लिए भी। तो
मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई आपसे पूछे बाहर निकल के कि आपने सैफरोनी में जाके क्या किया, बेग में जाके क्या किया, तो मैं आपको जवाब देता हूं कि आपने क्या किया। यू मेड योर मेमोरीज, आपने यादें बनाई। अभी तो वो ताजा है, आपको उसका पता नहीं चलेगा कि वो क्या चीज है, लेकिन जब बड़े होते जाओगे और फिर वापस मुड़ के देखोगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा जैसे बड़े होते जाओगे। अच्छे टेक्नोक्रेट्स बन के बाहर आओगे, अच्छी जॉब ढूंढोगे, अच्छी सैलरी मिलेगी, सेट हो जाओगे लाइफ में, और तब कहीं पे यहां से पसार भी होगे इस कैंपस के सामने से, इस रोड पे भी अगर निकलोगे तो आपको याद आएगा कि यहां पे क्या हुआ था, कैसे मस्ती की थी, कैसे तूफान किया था, कैसे एक जय वसावड़ा ने आके आपको बोर किया था, सब याद आएगा आपको। तो ये यादें बनाने का वक्त है आपका। इट्स वन ऑफ द बेस्ट टाइम। जैसे राजपूत साहब ने कहा कि अगर आपको नहीं, मेरे ख्याल से चतुर्वेदी साहब ने कहा कि बेस्ट टाइम इज द कॉलेज। अगर मुझे वापस जीने का टाइम मिले तो मैं कॉलेज में आके जी लूं, क्योंकि फिर वो सूट वूट निकाल देंगे, वो जींस वींस पहन के, टी शर्ट पहन के खड़े हो जाएंगे। इसे काइंड ऑफ मेकिंग ऑफ स्वीट मेमोरीज। मेरे दोस्तों, ये जो जवानी के दिन है हमारे पास, वो हम इस तरीके से जिए, इतने कलरफुल जिए, इतने सफरोने होके जिए कि हमारे पास इतनी सारी डिपॉजिट हो जाए अच्छी यादों की, स्वीट मेमोरीज की, कि आप पूरे के पूरा बैंक बैलेंस अपना खाली कर दो कि फिर भी ये ट्रेजर आपको नहीं मिलेगा, ये मुफ्त में नहीं मिलता, ये आपको बनाना पड़ता है, आपको अर्जित करना पड़ता है, और उसके लिए आपको जीना पड़ता है। उसके लिए आपको दिल खोल के, जैसे उनको ने बताया ना इंट्रोडक्शन में, वो 2 लाइन का इंट्रोडक्शन काफी था, बाकी सब तो पेरिफेरल है, वो तो बदल जाता है। वो मेरे बारे में जो कुछ भी कहा जाता है बदल जाता है। हमने देखा ना, वीरेंद्र सहवाग अब बैटिंग करने के लिए आते हैं, उनका इंट्रोडक्शन कमेंटेटर देने की शुरुआत करते हैं कि ये सेंचुरी की दादा भगवान और उनके अक्रम विज्ञान के बारे में। तो वो पूरा जो साइंस है वो कर्म की फिलोसॉफी के ऊपर आधारित है। वो पूरा विज्ञान जो है अध्यात्म और कर्म का है। कर्म आपके हाथ में है, फल पे आपका अधिकार नहीं है। फाइन, आशा नहीं है ऐसा नहीं है, आप आशा तो रखो फल की। गीता में ऐसा नहीं किया कि आशा मत रखो, अधिकार नहीं है। आप पेपर लिख लो, अब पेपर कैसे आएंगे, कैसे जवाब मिलेगा, कैसी मार्कशीट में क्या लिखा, उसमें आपका अधिकार नहीं है। आप वो देखने वाले नहीं हो, चेक करने वाले नहीं हो, अधिकार नहीं। आशा रखो 100%, लेकिन ना आए तो कोई बात नहीं, आगे चलो। જ્યારે જગત મને કંઈક નડે છે ત્યારે મને મારામાં કશુંક જડે છે, આ એટીટ્યુડ થી આગળ વધો। જ્યારે જગત મને નડે છે ત્યારે મને મારામાં કશુંક જડે છે, આમ આગળ વધો। और याद रखना, गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अगर सवारी करोगे तो भूल भी करोगे, गिरोगे, कोई बात नहीं। अगर मैं तो कहता हूं कि नई पीढ़ी को एक बात अगर पुरानी पीढ़ी को देनी है तो वो भूल करने की स्वतंत्रता देनी है, उसको भूल करने की फ्रीडम दो, तो वो आगे बढ़ेंगे। एक काव्य की पंक्ति से समापन करूंगा। अंगार फिल्म की गीत की पंक्ति है, मुझे बड़ी पसंद है। मुश्किल में है कौन किसी का, समझो इस राज को, लेकर अपना नाम कभी तुम खुद को आवाज दो, बिना लड़े मत हारो, तुम खुद को ललकारो, खून बहे नस नस में, हर एक बात हो बस में, खून बहे नस नस में, हर एक बात हो बस में। विश यू ग्रेट सक्सेस इन लाइफ एंड बेटर जॉय एंड फन इन लाइफ। एंजॉय। थैंक यू। आज जिंदगी में पहली बार बहुत दुख हुआ कि गुजराती अच्छे से नहीं आती और सर की बुक नहीं पढ़ी, और आज पता चला कि मेरे सारे दोस्त इनके इतने बड़े फैन क्यों हैं कि ऑटोग्राफ लेने के लिए अभी लाइन में खड़े होने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सर, आपके ये वर्ड्स हमेशा याद रहेंगे आगे फ्यूचर में, अभी हमेशा। इतने इंस्पायरिंग वर्ड्स, इतने अट्रैक्टिव वर्ड्स, थैंक यू। नाउ आई रिक्वेस्ट our honorable trustee Shri Priyesh Dalal to eulogize our chief guest, Honorable Home Minister Shri